Good morning. Good morning. Hi, good morning. Good morning, sir. Good Hi, morning. Good morning, Good everyone. morning, ma'am. We'll have the best day of our lives. So we'll start with affirmations today, but Priya is taking us through the affirmations today. I thought that I'll also close my eyes and repeat it in my mind. So yes, Priya, we can start 5 minutes. Okay, ma'am. I love my body. I love my body. Priyanka, please mute yourself. I love my life. I have fun wherever I go and whatever I do. I am rising above every obstacle. I am talented and getting better every day. I'm thriving and flourishing in my life. I'm strong and healthy. I am in the best shape of my life. I am beautiful inside and out. I am fit, firm, and healthy. I am full of energy and vitality. I have an amazing immune system that always keeps me healthy. I am dedicated to improve my health and fitness. I am easily shedding extra fat. I am enthusiastic about life. I am a confident person. I am radiant and youthful. I am a victorious person. I am the blessed child of the universe. I am enjoying my life full of freedom. I am enriched in everything I do. I am a money magnet. I attract money from multiple sources of income with ease. I am wise and protected with my finances. I am accomplishing everything I want to do. I am courageous. I'm excited to see constant breakthroughs in my life. I'm enjoying the gifts of the five elements. I'm always at the right place at the right time. I'm a genius, always flowing with creative ideas. I love myself. So, yeah, over, ma'am. Thank you so much. 5 minutes are done. Yeah, thank you, Priya, so much.
Thank you, I was ma'am. enjoying closing my eyes and doing it myself. Wonderful experience actually, that too in the morning when every Yeah. one of us do together. Now it's really wonderful, Yes. ma'am. It got Yeah, so the much. energy is very different, and doing it at a time when the sunrise is happening has a different kind of a power. Absolutely, ma'am. Thank Yeah, you so thank you so much. So today's the chapter that we are going to do is called magic ingredients. हम सब बहुत ज्यादा हमने मेरे ख्याल से कोई भी अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जब हमने बिना वाटर एफर्मेशन के बिना किया हो. मतलब कोई भी चीज है व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर बॉडी फैट तब भी उन्होंने बोला है दैट मैंने वाटर को ये बोला था दैट आई एम लूजिंग माय बॉडी फैट. कोई सक्सेस होती है व्हेन सुनैना हैज शेयर्ड अबाउट द हाउ शी सेड दैट मैंने वाटर एफर्मेशन की थी, वाटर को बोला था. जब लोगों को पैसा चाहिए होता है एकदम से किसी चीज के लिए और उनको फाइनेंशियल क्रंच होता है तब वो वाटर एफर्मेशन करते हैं, पानी को बोलते हैं दैट आई एम रिसीविंग सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी विथ ईज. सो जब हेल्थ में कुछ गड़बड़ होता है तब हम वाटर एफर्मेशन करते हैं और बोलते हैं दैट आई एम वेरी वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव एन अमेजिंग डाइजेस्टिव सिस्टम एंड किडनीज, या जो भी हमको बोलना होता है. सो इस तरह से वाटर एफर्मेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो सबके एक्सपीरियंस में आता है क्योंकि वाटर की 100% मेमोरी होती है. सो आज वाला चैप्टर इज अबाउट दैट. मतलब हम जिंदा हैं क्योंकि हम खाना खा पाते हैं, है ना. जिंदा होने का रीजन यही है कि हम खाना खाते हैं और हम पानी पीते हैं. ये दोनों चीजों के बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे. तो हमारी लाइफ, हमारा लाइफ फोर्स, हमारी बॉडी जो सबसे प्राइज पोजेशन है, हमारी हेल्थ इज इक्वल टू फूड एंड वाटर. सो दैट इज द चैप्टर ऑफ टुडे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द मैजिक इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मतलब खाना, हमारी मतलब मैजिक इंग्रेडिएंट है ग्रैटिट्यूड. खाने और पानी को मिला के अगर हम अपनी जिंदगी जिएंगे, so we will see that like things will get very easy for us because वाटर को आप कुछ भी बोल दो, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं ना रिकॉर्डिंग मशीन है, तो वो वाटर भी हमारा रिकॉर्डिंग मशीन है. आप जो बोलोगे खाने को, पानी को, वो फुलफिल हो जाता है. बिकॉज वाटर इज ऑलवेज लिसनिंग. हमारी बॉडी जो खुद ही 72% वाटर की बनी होती है. हमारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में बहुत सैचुरेटेड वाटर रहता है और वाटर हमेशा हमारी बात सुन रहा होता है. अगर हम चिंता में होते हैं, अगर थॉट में भी अंदर कुछ वरी चल रही है और बोल रहे हैं ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा है, अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ, अभी तो टाइम होने वाला है, मेरा तो वो बैंक का काम ही रह जाएगा, मेरा लोन सैंक्शन नहीं होगा, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा. अगर ये हम सोच रहे हैं तो ये भी आपका वाटर सुन रहा है बॉडी के अंदर का, और उस हिसाब से अब आपका बनता हुआ काम भी नहीं होगा क्योंकि इंटरनल थॉट प्रोसेस वो चल रही थी, क्योंकि वाटर पूरे टाइम आपकी बात सुन रहा होता है ना. तो आज हमारा चैप्टर ही फूड एंड वाटर पे है. फूड एंड वाटर को हम जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड उसमें स्टफ करके कंज्यूम करेंगे, यू विल सी दैट योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग. एंड इस इमेज में बेवरेजेस बने हुए हैं. एक कुछ सैंडविच या केक जैसा कुछ रखा हुआ है, सैंडविच रखा हुआ है प्लेट में, और कोई भी हॉट बेवरेज है, मिल्क है या हॉट चॉकलेट, चाय, कॉफी, जो भी हो सकता है. सो इन दोनों में अगर हमने बहुत सारा, और एक स्टरर पड़ा हुआ है, स्टरर है उस बेवरेज में, चम्मच या जो भी स्टिक स्टरर. सो उसमें अगर आप इसमें, और मिला हुआ क्या है कि पूरी जादुई धूल इसके आसपास है ग्रैटिट्यूड की. तो मतलब स्टरर का मतलब है कि अपने खाने में आप ग्रैटिट्यूड को मिला दो, उसको मिक्स कर दो, है ना. यही वो स्पून रखा हुआ है, मतलब ग्रैटिट्यूड को मिला दो आप अपने खाने में बहुत अच्छे से, ताकि वो इस तरह का दिखने लग जाए जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है. और फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करो एंड देन वी विल सी दैट लाइफ बिकम्स अ मिरेकल. और ये सबसे आसान टूल है और इसको वे ऑफ लाइफ हमको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर व्हाट वी ईट. ये हम जब भी कोई वेबिनार्स या कुछ लेते हैं तो ये हमारा कोट है दैट वी आर व्हाट वी ईट. आप वो हो जो आप खाते हो एंड वी विल बी व्हाट वी ईट. ओके, सो इस हिसाब से अगर हम ईट क्या कर रहे हैं, खाने के साथ साथ खूब सारा ग्रैटिट्यूड. सो ऑब्वियसली अगर कोई हेल्थ चैलेंज है या किसी भी तरह का चैलेंज है, ठीक है, वी विल सी दैट वो रिजॉल्व होने लग जाता है. सो या रीना इज रीडिंग टुडे. कौन? प्रिया, आई एम सो सॉरी. दीपा. Ma'am, I'm reading. हाँ. Good morning, everyone. Day 8, the magic ingredient.
A thankful heart hath a continual feast. This is the quote by W.J. Cameron, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food. Vegetarian, Vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Quote, if there is magic on this planet, it is contained in water. Unquote. Lauren Heasley, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here.
none of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction, and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches.
Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8, the magic ingredient. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want to, you can sprinkle your food or drink with magic dust. 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Deepa. So beautifully you were reading that I was also flowing. मैं बीच में सोच रही थी कि मैं रुक के एक बार आधा explain कर देती हूँ क्योंकि इतना लंबा chapter था. But just got, like I was flowing in your reading and the chapter is so beautiful. Every line of it is thoroughly enjoying, Thank you, ma'am. like reading this chapter. Thank you so much. So one of the most important chapters. अब आप सोचो कि अगर आप खाना जो भी खाते हो, अगर आपको खुद को ग्रो करना पड़ता, अगर आपने बैंगन खाया है तो आपको ग्रो करना पड़ता, अगर आपने चने बनाए, चना करी, सोचो कि अगर आप खुद अपना ग्रो करते, हमको सब रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन आज तक शायद हम बहुत ही थैंकलेस रहे खाने को लेके एंड हमें लग रहा था कि ठीक है, खरीद लिया, जो हो गया बना दिया और खा लिया. बट like just imagine that पूरी दुनिया में कितना पावरफुल ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है. लोग फैक्ट्रीज में आटा हम जाके खरीद लेते हैं, बट सोचो कितना प्रोसेस है उसके पीछे. मतलब पहले तो वो जो फील्ड था, जो भी जहाँ पे फार्मर्स ने ग्रो किया, उसको पहले फर्टाइल बनाना, उसके लिए प्लाउइंग द लैंड करना पड़ता है. मतलब वो आजकल तो मैकेनिकली हो जाता है, लेकिन अभी भी लोग कैटल को यूज करके प्लाउ करते हैं फील्ड को. ठीक है, फिर उसमें सीड उगाते हैं, फिर सीड उगा के उसको जैसे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है ना, लाइक योर ओन बेबी, इस तरह एक एक दिन उसका ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, और सोचो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बारिश आ जाती है, फार्मर्स को इतना ज्यादा कुछ करना पड़ता है उसके लिए. वो थ्रेशिंग होती है, उसको फिर काटते हैं, फिर उसकी वहीं पे प्रोसेसिंग होती है, थ्रेशिंग होती है. थ्रेशिंग के बाद वो एक बल्क स्टोर हाउस में स्टोर होता है, वहां से वो ट्रक में, ट्रैक्टर में लोड होके वो जाता है लाइक फैक्ट्रीज जहाँ पे उसका आटा बनता है. इतने सारे लोग वहां काम कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर वहां से वो फाइनली मतलब पैकेजिंग यूनिट में जाता है, पैकेजिंग यूनिट से फिर वो होलसेल मार्केट में आता है, होलसेल मार्केट में वो जो पैकेट है आटे का वो रिटेल मार्केट में आता है जहां से हम खरीदते हैं. फिर फाइनली हम पैसे देके उसको खरीद के अपने घर में लेके आते हैं. हमारे घर में कभी हम बनाते हैं, कभी कोई और बनाता है.
ठीक है, और फिर हम फाइनली खाना खाते हैं। तो सोचो कितनी लंबी जर्नी वो स्केल करके आता है ना। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड जस्ट इमेजिन अगर हमें खुद ये करना पड़ता अपने खाने के लिए, जैसे बाकी चीजें भी हम अपनी खुद करते हैं, वैसे हमको खाना भी खुद ही अपना उगाना पड़ता और फिर उसके बाद हम कुक करके खाते। इट वुड हैव बीन क्वाइट अ टास्क। मतलब इट इज नॉट इजी कि इतनी आराम से, इतनी फैसिलिटी के साथ हम खाना खा लेते हैं, और जिसकी वजह से जो जिंदा है, जो हमको प्राण शक्ति देता है, ठीक है, हमारी लाइफ फोर्स, हमारी लाइफ ही खाने की वजह से है। खाना और पानी नहीं होगा तो हमें जिंदगी होगी ही नहीं। सो इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस होता है खाने का, इसके लिए बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट, हमको तो रेडीमेड चीज मिल रही है अपने घर में, अपने किचन में हमारी पूरी किचन स्टॉक्ड होती है, उसमें दालें होती हैं, उसमें मतलब सब्जियां फ्रिज में होती है, घी, ऑयल, शुगर, ये सब, टी लीव्स, ये सब हमारे घर में स्टॉक होता है। सारी दूसरों की, मतलब लिटरली हम भी शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स पे खड़े होके ही हम रोज जीते हैं, क्योंकि खाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे पैसा हो या जैसा भी हो, फूड इज समथिंग एंड वाटर समथिंग जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। सो डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड अपना बहुत बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से, लाइक जब ग्रैटिट्यूड करते हैं ना खाने के लिए, सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड, आई फॉलो व्हाट आई विल टेल यू व्हाट आई फॉलो. So I call it GTSC process. So every time I'm drinking or eating something, I follow GTSC. GTS, S for Singapore, and C. So that is G for people who have grown the food. Okay, and it's a quick, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर आपके खाने में अगर बर्गर भी आया है ना, even if it is that food, so आप GTSC process एकदम से करो, उसको देख के। ऑब्जर्वर इफेक्ट के मायने अलग होते हैं, ठीक है। जब आप पानी को भी अगर देख के कुछ बोलते हो ना, तो आप क्योंकि देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो पानी को, उसके सारे मॉलिक्यूल्स एटॉमिक लेवल पे उसकी एनर्जी फील्ड में चेंज आ जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जर्व करो, अगर आपके प्लेट में बर्गर रखा हुआ है आप उसको देखो, एंड थैंक ऑल द पीपल हु हैव ग्रोन इट। जी इज ग्रो, पीपल हु हैव ग्रोन इट, है ना। T is people who have transported it. S is people who have sold it, selling people, जहां से आप खरीद के लाए हो, ठीक है। वो होलसेल सेलर्स भी हो सकते हैं, वो रिटेल सेलर्स भी होंगे, क्योंकि सेलिंग में दोनों आ जाते हैं। एंड C is the person who has cooked. So like अगर आप खुद कुक कर रहे हो तो बात अलग है, ऑफ कोर्स, लाइक यू कैन थैंक योरसेल्फ, बट अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस कोई और कुक करता है, हम खाते हैं। मम्मा कुक करती हैं, हम खाते हैं। सिस्टर कुक करती होगी, कुक्स आते हैं कुक करने के लिए, कभी कभी घर में ही स्टाफ जो होते हैं वो कुक करते हैं, है ना। तो जो भी कुक करता है, तो GTSC प्रोसेस को आपको रोज फॉलो करना है। और चाहे वो लाइक पानी के केस में भी पीपल, मतलब पानी जिस तरह से हमको मिलता है, अगेन इट इज अ मिरेकल। नहीं तो सोचो, लोग पानी भरने के लिए, अभी भी मैं देखती हूँ दैट वो ऐसे जो क्लस्टर्स होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, वहां पे ट्रक आता है, वहां से वो पानी भरते हैं अपने अपने उसमें, फिर इतने गर्मी में लाइन लगा के रखते हैं। लाइन, वो म्यूनिसिपैलिटी का एक ट्रक आता है, वो लाइन से खड़े हुए होते हैं, और इतनी लंबी लाइन होती है, और उसमें जितने ज्यादा बर्तन, बकेट सब लेके आए, ठीक है, और साथ में किसी को लेके आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी वो ले पाए, और वो लेके पाते हैं। और पानी की राशनिंग होती है, म्यूनिसिपैलिटी उनको एक जने को 2 बकेट से ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। अब वो 2 बकेट उठा के वो इतनी धूप में घर लेके जाते हैं, वहां पे जाके ऑफकोर्स वो पानी को राशन कर करके यूज करते हैं। आपने सोचा हमारे घर में क्या हाल है, मतलब कोई भी टैप खोलो पानी आना शुरू हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन वाटर, पानी आना शुरू हो जाता है। नहाना है हमको, बहुत आराम से गीजर लगा हुआ है, एक टैप में से गर्म पानी आएगा, एक टैप में से ठंडा पानी आता है। वॉश बेसिन है जहां पे टैप आता है। फ्लश सिस्टम इतना अच्छा है, पहले के जमाने में लोगों को जाना पड़ता था सुबह सुबह उठ के खेतों में, ठीक है। वो टॉयलेट मूवी देखी है हमने, उसमें देयर वाज, women were not like, they didn't have that toilet in the house, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी। वो जो मूवी देख के, इट वाज सच एन आई ओपनर, कि वो ट्रेन आती थी उस टाइम सुबह सुबह, तो वो क्योंकि उसको बाहर जाने में थोड़ी शर्म लगती थी, तो वो ट्रेन आके रुकती थी 20 मिनट के लिए, वो फटाफट अपना, मतलब वो वहां पे रुकी रहती थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, की वो ट्रेन आएगी तो उसके ट्रेन के टॉयलेट में जाके वो करके आएगी, क्योंकि टॉयलेट्स ही नहीं थे या कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इस तरह अभी भी लोग रहते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ, जब भी व्हेन आई ड्राइव अराउंड, व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, आई डू सी दैट म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक खड़े हैं, और फिर लोग लाइन लगा के पानी, मतलब उसमें अपने बकेट भर के ले जाते हैं, फिर घर लेके जाते हैं। इमेजिन 2 बकेट, हम 4 बकेट तो मेरे ख्याल से शैम्पू वैम्पू जब करते हैं उस नहाने में ही हम यूज कर लेते हैं ना। कितनी ज्यादा नियामत है, कितनी बड़ी नियामत है हमको,
कि फटाफट टॉयलेट आ रही है, रात को 4 बजे भी आप जा सकते हो, ठीक है। कोई खेत में नहीं जाना पड़ता, कोई ट्रेन की वेट नहीं करनी पड़ती है, इतनी फैसिलिटीज है। बट हम इस नियामत को ही भूल गए हैं कि वाटर एंड दिस इज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। सो वी हैव टू, ये GTSC प्रोसेस हमको यूज करना पड़ेगा हर बार जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मास प्रोडक्शन भी दुनिया में बढ़ जाएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना UN के, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लेना, है ना, बिकॉज अपनी प्रेयर्स के थ्रू वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी ऑल्सो। जब लार्जर गोल हम रन करते हैं ना, जब बहुत लंबी रेस रन करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें, पैसा, इज्जत, शोहरत, खाना पीना, अच्छी बॉडी, हेल्थ, ये सब उसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो लंबी रेस दौड़ो, लार्जर पिक्चर, ड्रीम बिग। सो अब आप सोच रहे हो कि आप UN के उस वाले गोल की तरफ आप वर्क कर रहे हो, दैट 2030 तक UN ने बोला है दैट नॉट अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड विल स्लीप हंग्री। Okay, we are definitely going to pray towards it. If that is your goal, you will see that बरकत जिस तरह से छप्पर फाड़ के आपके घर में आएगी ना, आप गिन भी नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए लार्जर गोल के लिए वर्क करना, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स दी स्मॉलर। आपके पर्सनल गोल्स जो है वो उसी के अंदर आते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। ऑब्वियसली कोई लार्जर गोल आपका है कि कुछ जो भी मिशन है आपकी जिंदगी का, हायर पर्पस है। हम सबके हायर पर्पस होते हैं, बट हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा ही नहीं होता, तो वो आंसर ही नहीं मिला है आज तक। बट हायर पर्पस के लिए जब हम प्रे करेंगे, चाहे even if it is like thank you universe that by 2030 every child in the world, every person in the world is sleeping with a full belly, है ना, पेट भर के वो सो रहा है, आप इस तरह। तो ये वैसे भी ग्रैटिट्यूड जब हम GTSC वाला करेंगे तो अपने आप देखोगे कि मास प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जो फार्मर्स हैं जिनके खेत में क्रॉप्स खराब हो जाते हैं बारिशों की वजह से या किसी भी चीज, कभी कभी पेस्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं, है ना, उस वजह से, तो उनका प्रोडक्शन, उनकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी, फार्मर्स की। दैट मीन्स अपने आप वो इकोनॉमी हमारी ऊपर जाएगी। एंड ऑफ कोर्स उस प्रेयर, उस एनर्जी जो आपने दी है GTSC के थ्रू, GTSC की सेल्फलेस प्रेयर है ना, मतलब आप नहीं भी, आप आराम से खाना भी खा सकते हो, खाओ अपना मस्त रहो, क्या जरूरत है ग्रैटिट्यूड करने की। लेकिन जब हम करते हैं तो वो एनर्जी जो आप देते हो ग्रोअर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, सेलर्स को और कुक को, वो एनर्जी आपकी जिंदगी में वापस आती है। एंड इट विल स्टार्ट आंसरिंग योर ड्रीम्स। If your dream was to take a BMW car, you will have that dream answered because you are doing a gratitude for all the growers, sellers, transporters. This is how life is connected. ये सब एनर्जी का खेल है, ठीक है। God has sent us to play on this earth. कहते हैं ना, life is a game. ये हमने पावर बुक में पढ़ा था। It's a game and we are all playing it. Seriously play नहीं करना है, गेम कभी भी सीरियस होके प्ले नहीं करते, ठीक है। आप अच्छी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो, और अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है लाइफ का गेम खेलने के लिए? ब्लेसिंग, ग्रैटिट्यूड्स, ठीक है। सो वी हैव टू डू अ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बाय लुकिंग एट द फूड एंड वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू टुडे ऑनवर्ड्स। और पानी को आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको परफेक्ट आई साइट चाहिए, आप पानी लो हाथ में, उसको होल्ड करो, देखो उसको, ठीक है। आंखें नहीं बंद करनी है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करो। मैंने देखा है कि लोग खाने के टाइम आंखें बंद करके फिर उसको करते हैं, नहीं, ऑब्जर्वर इफेक्ट है वो, आंखों से देखो उसको, घूर के देखो, ठीक है। सो ऑब्जर्वर इफेक्ट करो, और फिर आप अगर कोई आसपास है तब तो आप मन में ब्लेसिंग करो, पूरा ही करो, GTSC पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज उन लोगों की वजह से ही खाना हमारी प्लेट पे है, जिन्होंने ग्रो किया, ट्रांसपोर्ट किया। हम तो बड़े मजे से रात में AC में सोते हैं, बट ये जितने भी ट्रक वाले हैं, आपको पता है ना, ट्रक इज अलाउड ओनली बिटवीन 10 to 6 इन द सिटीज। तो वो बेचारे पूरे दिन भर कहीं पे पार्क्ड रहते हैं ट्रक, और रात के टाइम जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब उनको भी नींद आ रही होती होगी, ठीक है, तब वो बेचारे हमें खाना लाने के लिए वो ट्रैवल करते हैं, वो ट्रक चलाते हैं पूरी पूरी रात, क्योंकि ट्रक चलते ही 9 से 6 बजे तक है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स हाईवेज पे वो किसी भी टाइम चल सकते हैं। सो इतनी दूर दूर से कुछ कुछ खाना आता है। मतलब I live in Delhi, but I normally see the orange carrot which we don't grow anywhere even till Maharashtra. मतलब ऊपर से लेके कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक ऑरेंज कलर की कैरेट ग्रो नहीं होती है। हाँ, दिल्ली में एक लाल कलर की कैरेट ग्रो होती है जो हमको सर्दियों में मिलती है, और अक्टूबर से मिलनी वो शुरू होती है। हमको ऑरेंज कैरेट नहीं मिलती, मतलब ग्रो नहीं करते हम, मिलती है जब भी हमें कुछ सॉर्टेड वेजिटेबल्स कुछ बनाना होता है, वी ग्रो इट हियर। जुकीनी
नहीं ग्रो होती है, दिल्ली के आजू बाजू भी किसी स्टेट में ग्रो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है, खूब अबंडेंस में मिलती है और पूरे साल मिलती है, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज टेंडर कोकोनट वाटर। दिल्ली के बहुत लोग पीते हैं, लेकिन कोई कोकोनट के यहाँ पे है ही नहीं, पेड़ ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, आसपास कहीं पे भी, ठीक है। इवन मध्य प्रदेश, गुजरात और वहां पे भी नहीं है। सो वो सोचो कि लेकिन हम उनको अवेल कर रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया। ब्रोकली, ब्रोकली भी कोई ग्रो नहीं होती है, ब्रोकली भी आ जाती है कहीं से, बहुत अच्छे से हम उनके सूप्स बनाते हैं, हम उनकी सॉर्टेड वेजिटेबल्स बनाते हैं, हम अपने चाउमिन में डालते हैं, हम अपने वेजिटेबल राइस में डालते हैं, है ना। सो इमेजिन, बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल, किनुआ यू डोंट ग्रो इन इंडिया, इट इज ग्रोन इन बोलीविया। वहां से कैसे वो एयरलिफ्ट होके किस तरह से आता है, कितने लोगों का इंटरवेंशन है उसमें, एंड वी जस्ट ईट किनुआ एंड वी एंजॉय डूइंग इट, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड हार्ड वर्क ऑफ द पीपल जिसमें हम ऐश करते हैं बहुत ज्यादा। हमको बना बनाया खाना अपनी टेबल पे मिल जाता है। When I come back from work, food is already served for me on my table. मुझे पता भी नहीं होता है, मैं ये पूछती हूँ आज खाने में क्या है। ऑफिस भी जाती हूँ तो देयर इज अ खाना which is packed for me, मुझे कई बार नहीं पता होता कि खाना क्या है, मुझे ये भी नहीं पता होता है कि क्या खाने में, लंच में क्या है। So when my colleagues ask me, Deepti, what are you carrying today? So I said I'll have to check because मुझे नहीं पता होता। और when I open my lunch box or you know the pantry person opens the lunch box, तो मैं देखती हूँ इतनी सारी चीजें, कड़ी पकौड़ी होती है उसमें, उसमें बीन्स की वो होती है, उसमें सॉटेड ब्रोकली होती है, उसमें like I eat ragi and jawar only mostly, so ragi and jawar की चपातीज होती हैं, अच्छी सी घी जो वो लोग गरम गरम करके सर्व करते हैं ऑफिस में। So sometimes there is a very nice रायता जिसमें चिया सीड्स डले हुए होते हैं। फिर इनवेरिएबली आई थिंक पिछले 2 महीने से मैंगोज मेरे लिए खूब सारे पैक होके आते हैं, और उसके ऊपर पम्पकिन सीड्स एंड वो सीड्स अलग अलग तरह के जो ट्रेल मिक्स होती है वो डले हुए होते हैं। इट्स दैट इजी, राइट। हर बार मैं उस खाने को देखती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, दिस इज लाइक ब्रेथ टेकिंग वे में आई हैव माई फूड फॉर breakfast. Of course I don't eat because I do intermittent fasting, but lunch and dinner is something really wonderful lunch and dinner because of mehnat of all these people who have done, जो दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, वो GTS ही तो बनता है, ठीक है। और उस एनर्जी ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ जब हम खाना खाते हैं तो आप देखना आपकी हेल्थ कितनी बढ़िया होगी। हम सब भूल जाएंगे, ये कोल्ड कॉफ जैसी चीजें भी हमको नहीं होंगी अगर हम ग्रैटिट्यूड को बहुत अच्छे से मिक्स करके लेंगे। सेम थिंग पानी का इमेजिन, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से somebody has pulled it up and brought, some of us live in a very high rise, ओवरहेड टैंक तक गया है, कितने पाइप लगे हुए होंगे, किसने मोटर इंस्टॉल करी है जो वो ऑन होती है, नीचे का पानी हमारे ओवरहेड टैंक में जाता है, वहां से वो हमारे घर के डिफरेंट डिफरेंट टैप्स में आता है, क्लीन होके आता है। उसके बाद कुछ घरों में आरओज होते हैं, एक्वागार्ड होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, वहां से वो फिल्टर होके आता है। दैट इजी लाइफ इज, एंड वाटर हैज 100% मेमोरी। सो अगर आपने वाटर को देख के ऑब्जर्वर है तो घूर के देखना है ना, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ आपने देखा और आपने उसको बोला थैंक यू फॉर माय परफेक्ट किडनीज, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू सो मच फॉर improving my eyesight by day and night, thank you for making me a money magnet, thank you so much for giving me a world full of opportunities, thank you that my income is increasing constantly. Now us energy ke sath water goes inside and that water becomes you after some time, hai na? And the same energy will start flowing in your water in the body. It's a blood, lymphatic system, brain, ये सब तो बहुत ही प्योर वाटर होते हैं, ठीक है। सो इन सारी चीजों में अब वो वाली एनर्जी फ्लो करेगी, उसी एनर्जी के साथ आपके नए सेल्स बनेंगे, उसी एनर्जी के साथ आपकी हीलिंग एंड रिपेयरिंग होगी, उसी एनर्जी के साथ आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स ये सब बनेंगे, आपकी हड्डियां बनेंगी, आपके मसल्स बनेंगे। सो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप बहुत ज्यादा सैचुरेट करके ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ में आप ये वाली प्रैक्टिस करें। तेजल ने एक बार शेयर किया था किस तरह से शी वाज डायग्नोज्ड टू बी हैविंग अ वेरी हाई ब्लड शुगर, तो उनका हाइपरग्लाइसीमिया था, किस तरह से उन्होंने अपनी डायबिटिक स्टेट को नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट किया वाटर थेरेपी कर करके। सो इस तरह से कोई भी से नवदीप हैज शेयर्ड रिसेंटली, है ना, नवदीप हैज शेयर्ड दैट हाउ द थायराइड लेवल
came into the normal values water therapy करके. So इस तरह से we can start using it very like बहुत effectively दिल से. So मतलब अगर आप अकेले हो तो आप literally you keep your hand on your heart and say thank you so much to all the growers, thank you, and then you consume your food. उसकी पूरी एनर्जी चेंज कर दो. और फिर अपना सारा जो पानी, कॉफी, चाय, हॉट चॉकलेट, दूध, बटर मिल्क, जूसेस, आप जो भी पी रहे हो उसको आप अमृत बना दो, जैसे वो मंदिर से आया हुआ है. ठीक है, अमृत ऐसे ही बनता है. जब उसमें आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्वांटम लेवल पे, और अब आप उसको कंज्यूम करोगे, उसका बहुत पावरफुल हीलिंग इफेक्ट हो जाएगा. ओके, मसारो आमोटो ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बताया है कि किस तरह से आप जब वाटर को सिर्फ थैंक यू और आई लव यू बोलते हो तो उसकी टोटली एनर्जी चेंज हो जाती है, और किस तरह से ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरह उसके वाटर के क्रिस्टल्स है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हो, तो उसके सारे वाटर के क्रिस्टल्स एक ब्यूटीफुल फ्लावर शॉप मतलब शेप में आ जाते हैं, एंड बहुत ही इवननेस, लाइक बहुत ही सिनर्जाइज फ्लावर्स होते हैं सेम साइज एंड शेप के. ठीक है, और वही अगर आप आई हेट यू बोलते हो अपने पानी को तो उसकी एनर्जी चेंज. अभी जब मैं हैदराबाद में थी तो मैंने आपको एनर्जी का बताया था कि मिस्टर बालासुब्रमण्यम जो थे, तो वो जब एनर्जी उन्होंने जब मुझे बताया था कि आप अपना नजरिया उतार दीजिए, या जो स्टोन आप मत जस्ट फ्री योर बॉडी, आप अपनी बॉडी की एनर्जी जनरेट करो, यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग. ये सब ऐसे ही होते हैं, एक एक हफ्ते की चीजें होती है, एक एक हफ्ते में इनकी एनर्जी डिप्लीट होने लग जाती है. तो उन्होंने मेरा सबको जो क्रिस्टल भी उतरवा दिया, मेरा नजरिया भी उतरवा दिया था. फिर उन्होंने बताया था कि वो, और क्योंकि उनके पास ऑरा डिटेक्टिंग गैजेट था, फिर उन्होंने मुझे ये वाला टेस्ट कराया था पानी वाला. सो बट ही सेड कांच की ग्लास में, तो कांच की ग्लास में मैंने पानी लिया था, एंड देन ही सेड दैट से आई लव यू, अच्छी चीज है, अच्छे से बात करो आप पानी से, अच्छी अच्छी बातें बोलो कि आप बहुत मजा कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आई लव यू बोलो कि थैंक यू पानी मेरी बहुत अच्छी हेल्थ देने के लिए, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये कर करके उन्होंने किया. तो और उसके बाद उन्होंने एनर्जी डिटेक्ट की, तो वो बिल्डिंग के बाहर जा रही थी, मतलब शू एकदम से ऐसे करके उनकी मशीन हिली. ठीक है, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि अब आप अब्यूजिव उसमें उस तरीके से पानी को बोलो, तो मेरे मुंह से अब्यूजिव ऐसे निकलता ही नहीं है. मैं जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही थी, मैं मन में गुड ही निकल रहा था और मुंह से उन्होंने बोला था हेट यू, आई जस्ट डोंट लाइक यू, इस तरह से बोलो. आई सेड दैट, और उसकी माइनस में एनर्जी चली गई थी सेम ग्लास ऑफ वाटर की. सो इतना फर्क पड़ता है. तो इसीलिए जब आप वाटर एंड फूड कंज्यूम कर रहे हो, पहली बात तो आपकी एनवायरमेंटल एनर्जी कैसी है ये भी बहुत डिपेंड करता है ना. अगर आप टीवी पे कोई क्राइम थ्रिलर देख रहे हो, उसमें मर्डर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, यू नो लाइक देयर इज लॉट ऑफ वायलेंस ऑन योर टेलीविजन, या आप न्यूज देख रहे हो कि बाढ़ में इतने लोग मर गए, इतने लोग बह गए, वहां पे यू नो वॉल्केनो इरप्ट हो गया, यहाँ पे हुआ है, लोगों की बहुत तबाही हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऑल दैट एनर्जी विल कम इनटू योर फूड एंड वाटर, और आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो आप खाना खाते वक्त, ये भी बहुत मायने रखती है. तो इसीलिए खाना जब बन रहा हो तो चकर 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 गुस्सा ये सब नहीं करना है. अगर आपकी कुक करिए, हम लोग तो भारती को बहुत खुश रखते हैं, स्पेशली व्हेन शी इज कुकिंग. कभी भी वो उसको कुछ गुस्सा आ रहा होता है या कुछ हो रहा होता है तो ऑलवेज टेल हर दैट भारती मैं बना लेती हूँ, आप जाके कुछ और कर लो, आप मतलब बेड्स ठीक कर लो या लॉन्ड्री चेंज कर दो या समथिंग, यू नो. और आई ट्रांसफॉर्म हर एनर्जी, आई ऑलवेज ट्रांसफॉर्म एनर्जी की भारती तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मजा आ जाता है. एक्चुअली उनके हाथ में जादू है, उनके हाथ में जादू है. अगर आपने भारती के बना हुआ हाथ में खाना नहीं खाया तो कुछ मिसिंग है लाइफ में. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. सो द पर्सन हु इज कुकिंग, अगर कुक बना रहे हैं आपके घर में, उसको कभी भी बैड मूड में मत बनाने दो, या फिर कोई अच्छा सा म्यूजिक घर में चला के रखो, समथिंग दैट दे ऑल्सो एंजॉय, उनके जॉनर का म्यूजिक, so that they also enjoy. या फिर कोई भजन कीर्तन हम बजा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, यू कैन वो गॉड सॉन्ग्स, आप जो भजन आरती जो भी है सुबह सुबह आपको चला के रख सकते हो, वो उस एनर्जी के साथ खाना बनेगा. ठीक है, और फिर किस एनर्जी के साथ आप कंज्यूम कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी आपका मूड खराब है, कुछ खराब है, उस वक्त मत पियो पानी. लोग रोते हैं और पानी पिलाते रहते हैं, उनको मत पिलाओ पानी. वो सारी एनर्जी जो जिस कारण से रो रहे हैं ना, वो उनकी बॉडी के अंदर जाएगी और वो चीज बहुत एम्पलीफाई हो जाएगी, बिकॉज अब आपके नए सेल्स की हीलिंग, रिपेयरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सब उस पानी से होंगे, उस एनर्जी से होंगे. तो इसलिए कोई रो रहा है, वो जब हंसने लग जाएगा तब उसको बोलो पानी पीने के लिए. नहीं पानी पिलाना है हमको. जब मूड खराब हो तो मत पानी पियो, बिकॉज वो सारी एनर्जी, इट एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट एनर्जी. ठीक है, आप टेबल को भी बोलोगे ना आई लव यू,
तो आप देखना कि वो उस पे कितना भी कोई आप वेट रख दो वो टूटेगी नहीं, इतनी ज्यादा, बिकॉज एनर्जी एट द क्वांटम लेवल एवरीथिंग इज एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, दिस दुनिया इज एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, लाइफ इज अ गेम। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था पावर बुक में। तो ये वाली हमारी आज की प्रैक्टिस है, खाने को पानी को ऑब्जर्वर इफेक्ट याद रखना और जीटीएससी याद रखना, ठीक है। पानी भी जब हम पिएंगे तो एकदम से थैंक यू टू द पीपल जिनकी वजह से पानी ऊपर गया, ऑल दोस पीपल इन्वॉल्व इन गेटिंग वाटर, बस इतना सा कर दो, थैंक यू टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन गेटिंग वाटर हियर एंड टू योर आरओ की कंपनी, है ना, एंड टू द पर्सन हु इज इंस्टॉल्ड। 1 सेकंड भी नहीं लगते, मतलब लिटरली 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको मन में ये सोचने में, बट ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से हमको वो कंज्यूम करना है। तो आज का हमारा कोई लिखने का असाइनमेंट नहीं है, सुबह सुबह ऑफ कोर्स काउंट माय ब्लेसिंग्स वेयर वी राइट 10 ब्लेसिंग्स, हम उसको रीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार, रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस पत्थर हाथ में लेके वी थिंक स्कैन द डे और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के थैंक यू बोलना, है ना, ये 2 कंटिन्यूज टू स्टे। एंड इन बिटवीन आज पूरे दिन जो खाना आप खाओगे, जो पानी पियोगे, अगर आप बिस्किट भी खाओगे तो आपको जीटीएससी करना पड़ेगा, ग्रोअर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सेलर्स एंड द कुक, ठीक है। सो ये हमको करना ही है, एंड देन यू सी दैट आपकी क्या मतलब द लाइफ स्टार्ट चेंजिंग। इट्स इज एंशिएंट टीचिंग्स से ये सारी चीजें डिराइव्ड है जब वो ऐसे करते थे। सो दिस इज व्हाट, हम भी तो प्रसाद चढ़ाते हैं ना भगवान को, खाने में से ही तो चढ़ाते हैं, खाना लेके मतलब यही खाना जो आपके किचन में बना है, आपने मीठे चावल बनाए, आपने मंदिर में या गुरुद्वारे में वो चढ़ाया, अब आप उसी को प्रसाद के रूप में लोगों को दे रहे हो, है ना। क्या हुआ, मंदिर में जाने से वो प्रसाद बन गया, वो ऑर्डिनरी खाना था, तो आप अपने ही खाने को प्रसाद बना के खा लो रोज, ठीक है, कुछ नहीं, थैंक यू तो बोलना पड़ता है। अगर आप मंदिर में गुरुद्वारे में भी, तो वहां पे गुरबानी चल रही होती है ना, शब्द पाठ चल रहे होते हैं, तो उसकी सारी एनर्जी आपके खाने में एब्जॉर्ब हो जाती है, अब आपका खाना बन गया प्रसाद। उसी तरह से मंदिर में पंडित जी को आप देते हो एक लड्डू का डब्बा और वो उस पर भोग लगाते हैं, भगवान को जाके ऐसे ऐसे करते हैं कि उसकी एनर्जी, और फिर वो कुछ कुछ मंत्र जाप मतलब भगवान के प्रेजेस करते हैं, है ना, वो करते हैं। अब आपका लड्डू का डब्बा जो आपने नथु स्वीट से लिया था, जो बहुत ही ऑर्डिनरी लड्डू का डब्बा था, अब वो प्रसाद बन गया है, अब उसमें पावर आ गई और अब सबको बोलोगे प्रसाद, सिर्फ वो 2 मिनट मंत्र जाप करने से भगवान के प्रेजेस में, इजंट इट। तो इसी तरीके से हम भी जब थैंक यू बोलते हैं तो हमारा सारा खाना प्रसाद हो जाता है, हमारा पानी अमृत बन जाता है। सो पानी को भी जब आप पी रहे हो और जब थैंक यू बोल रहे हो तो अमृत। मंदिर में भी जाते हैं तो हमको 1 ढक्कन पानी, 1 ढक्कन मतलब 1 चम्मच पानी पंडित जी देते हैं ना हमारे पाम में, जो हम बहुत अच्छे से प्यार से पीते हैं, फिर उसको सिर पे भी लगाते हैं और वो सारा। तो हम अपने सारे पानी को, हम तो 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं ना एक दिन में, तो हम तो सारे पानी को ही अमृत बना के पी लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें प्रेजेस थैंक यू ही तो बोलना होता है ना। तो हम थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस, थैंक यू एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो हम सारी एनर्जी को, सारा खाना आज के बाद से प्रसाद और सारा पानी हम अमृत पियेंगे। हम चाय भी अमृत, हमारी चाय भी अमृत है। जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पे हर जगह लिखा होता है अमृत तुल्य चाय बस ये यहाँ पे तो वो चाय भी हमारी अमृत होती है, हमारी कॉफी भी अमृत होती है, हमारा दूध अमृत होता है, क्योंकि हम बनाते हैं उसको ऐसा, है ना। ये आज की प्रैक्टिस है, तो कुछ कुछ लिखना पढ़ना नहीं है आज हमको, आज हमको ये प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार खाना जितनी बार। तो आज पूरे दिन की प्रैक्टिस है, हमेशा तो हमको थोड़ी सी मिलती है, आज हमको पूरे दिन की प्रैक्टिस मिली हुई है। So that's it about. Then we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind, जो विजय जी पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम एक लाइव एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं एक मिस्टर ब्लॉक का, जिनके मन में मेंटल ब्लॉक था। हम मेंटल ब्लॉक वाली चीजें पढ़ रहे हैं आज की, किस तरह से आप अपने मेंटल ब्लॉक हटा सकते हो कि नहीं मेरे पास तो कभी बहुत सारा पैसा नहीं आ सकता, नहीं मेरी सास तो कभी नहीं सुधर सकती, इतने साल से ऐसी ऐसी हैं, नहीं मेरे ये बस की नहीं है, ये जो सारी चीजें होती है ना, इनको मेंटल ब्लॉक्स बोलते हैं। So yes. Thank you, ma'am. He said a jinx was following him. Mr. Block said that he had been making an annual income of $20,000, but for the past 3 months, all doors seemed to jam tightly. He bought clients up to the point where they were about to sign on the dotted lines, and then at the 11th hour, the door closed. He added that perhaps a jinx was following him. In discussing the matter with Mr. Block, I discovered that 3 months previously, he had become very irritated, annoyed, and resentful towards a dentist who, after he had promised to sign a contract,
had withdrawn at the last moment. He began to live in the unconscious fear that other clients would do the same, thereby setting up a history of frustration, hostility, and obstacles. He gradually built up in his mind a belief in obstruction and last-minute cancellations until a vicious circle had been established. What I fear most has come upon me. Mr. Block realized that the trouble was in his mind and that it was essential to change his mental attitude. His run of so-called misfortune was broken in the following way. I realize I am one of the infinite intelligence of my subconscious mind, which knows no obstacle, difficulty, or delay. I live in the joyous expectancy of the best. My deeper mind responds to my thoughts. I know that the work of the infinite power of my subconscious cannot be hindered. Infinite intelligence always finishes successfully whatever it begins. Creative wisdom works through me, bringing all my plans and purposes to completion. Whatever I start, I bring to a successful conclusion. My aim in life is to give wonderful service, and all those whom I contact are blessed by what I have to offer. All my works come to full fruition in divine order. He repeated this prayer every morning before going to call on his customers, and he also prayed each night prior to sleep. In a short time, he had established a new habit pattern in his subconscious mind, and he was back in his old accustomed stride as a successful salesman. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है और इतना अच्छा एफर्मेशन है। तो जितने भी लोग आप लोगों के बिजनेस हैं, मतलब ये वाला जो मेंटल ब्लॉक है, कई बार ये होता है कि कस्टमर की इंक्वायरी आती है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती है ना। एवरीबडी जो कंसल्टेंसी में है, जो बिजनेस में है, जो सेल्स में है, जो जिसमें भी है, अगर आप जॉब भी करते हैं और आपकी सेल्स वाला है तो इंक्वायरीज बहुत आती हैं। सपोज 10 इंक्वायरी आई है, उसमें से 2 ही कन्वर्ट हुई है, 2 ही कन्वर्ट हुई है, मतलब मोनेटाइज आप 2 ही कर पाए, है ना। तो ये जो पर्सन थे, मिस्टर ब्लॉक इनका नाम है, इनका नाम हटा लिया है मे बी बिकॉज ऑफ हिज व्हाटएवर रीजंस। सो इनका ये था कि पहले तो इनकी इनकम बहुत अच्छी थी, $20,000 ये कमाते थे उस जमाने में, मतलब ये 40s 50s की बात है सारी। तब वे कमाते थे, एकदम से उनकी सेल डिप होने लग गई क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि किसी डेंटिस्ट ने इंक्वायरी करी, जो भी इनका बिजनेस होगा, मे बी ये इलेक्ट्रिकल वो जो इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई करते होंगे, तभी वो डेंटिस्ट के पास गए होंगे। डेंटिस्ट के पास, तो वो डेंटिस्ट का सब कुछ हो गया, सारी डील हो गई, साइन हो गया, बट जब पैसे देने की बारी आई तो उस डेंटिस्ट वो ही बैक्ड आउट, तो उसने पैसे नहीं दिए और वो डील कैंसिल हो गई। वो उनको ऐसा धक्का लगा उसके कारण कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में उस एक एक्सपीरियंस की वजह से ये पैटर्न बन गया कि मेरी डील नहीं क्लोज होती है, इंक्वायरी तो बहुत आती है, मेरी डील क्लोज नहीं होती है। अब ये नया पैटर्न बन गया, ये पहले नहीं था उनका, इस एक्सपीरियंस के कारण। अब क्या हुआ कि अब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, है ना। अब सारे उनके पास जो डील्स और इंक्वायरीज आ रही थी वो इंक्वायर करते और वो बिल्कुल लास्ट आवर पे, कहते हैं 11th आवर, मतलब आपके बिल्कुल लास्ट टाइम जो पैसे देने का वक्त आता है उस वक्त वो बैक आउट कर जाते, फिर इंक्वायर करते, फिर इस तरह से चलता गया कि उनकी फिर सेल इतनी ज्यादा डिप हो गई। क्यों? अब प्रॉब्लम तो बाहर नहीं थी, क्लाइंट्स में नहीं थी, प्रॉब्लम उनके सबकॉन्शियस माइंड में थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की प्रोग्रामिंग हो गई थी उनकी कि नहीं, मतलब वो फियर करते थे कि पता नहीं डील होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये पैसे टाइम से देगा कि नहीं देगा, पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब ये पैटर्न बन गया और ये फियर उन पे हावी होने लग गया, और हर बार कोई इंक्वायरी आती तो वो बस वही लास्ट मोमेंट जब पैसे देने वाला दिन आता तो वो मना कर देते थे। फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गए, ये मिस्टर ब्लॉक जो थे, और उन्होंने उनको ये एफर्मेशन बताई विच ऑल ऑफ यू इन द बिजनेस कैन डू। 1 सेकेंड, ये वाला जो था दैट जो भी है बहुत लंबा है, बट इसका जिस्ट मैं बता रही हूँ। ऑफ कोर्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने मोबाइल पे या जहां पे भी आप रख लीजिए, न हाथ से लिख के आप उसको बार बार पढ़िए। इसमें यह है कि
क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सबकॉन्शियस माइंड की पावर में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। खुल के फ्री फ्लो में हमारे पास पैसा आता है और सारी डील मिलती है, इसका ये मतलब है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑफ द माइंड कोई फियर नहीं जानती है, कोई कुछ नहीं जानती है, और मेरी लाइफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस की वजह, सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिव इंटेलिजेंस ही गाइड कर रही है, और मेरे पास खुल के पैसा आ रहा है। मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही है वो सारी मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ, एंड माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग बाय डे एंड नाइट, और बहुत फ्री फ्लो में पैसा आ रहा है, क्योंकि अबंडेंस जो है सबकॉन्शियस माइंड की वो अब हैंडल कर रही है, और सबकॉन्शियस माइंड के पास तो कोई फियर नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इन्होंने इस तरह से ये बोला कि सारे जो प्लान्स हैं, इट्स इज क्रिएटिव विजडम वर्क्स थ्रू मी ब्रिंगिंग ऑल माय प्लान्स एंड पर्पसेस टू कंप्लीशन। मतलब जो भी मेरा प्लान है कि वहां से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना पैसा आएगा, सब कंप्लीट हो जाता है। जो भी मैं सोचता हूँ कंप्लीशन हो जाता है, एंड वट एवर आई स्टार्ट आई ब्रिंग इट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। मतलब बहुत अच्छे से उसके सारे स्टेजेस में, कई बार स्टेजेस में पैसे आते हैं, फेज 1 में इतना आया 1 लाख रुपए, उसके बाद 1 महीने के बाद फेज 2 है, जिस तरह से काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पैसे आने लग जाते हैं। तो इस तरह हर स्टेजेस में सक्सेसफुल कंक्लूजन हो रही है, एंड माई एम इन इज लाइफ इज टू गिव अ वंडरफुल सर्विस टू ऑल दोज आई एम कॉन्टैक्ट, एंड जितने भी लोग कॉन्टैक्ट जो मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं वो ब्लेस्ड लोग हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सर्विस देता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने बार बार बोला। तो ये बिजनेस डील्स वालों के लिए, या जो भी सेल में है, या जो भी मतलब जिनके पास इंक्वायरीज आती हैं और मोनेटाइज नहीं हो पाती हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। तो आपके पास छप्पर फाड़ का पैसे आएंगे अगर ये वाली एफर्मेशन को हम प्लान कर लेते हैं रेपिटेशन के कारण। मिस्टर ब्लॉक जो थे, उन्होंने ये वाली एफर्मेशन को रोज सुबह और रोज शाम को, आप टाइमर लगा के कर सकते हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी है, और उसको बार बार ये रीरीड करना है। और रीरीड करनी, चाहे आपको समझ आ रही हो इंग्लिश, ना आ रही हो, ठीक है। जैसे बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसको वो मदर्स ब्रेस्ट मिल्क लेता है, तो उसको पता थोड़ी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में कितना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लेकिन वो दूध पी के वो बड़ा होता है ना। इसीलिए कोई, अगर आपको नहीं भी इंग्लिश समझ में आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाओ, सबकॉन्शियस माइंड को सब समझ में आता है, बिकॉज दैट इज गॉड। ठीक है, सो आप इस इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, उसको रीड करते जाओ, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट मिनिमम करना होता है, जिस तरह से प्रीवियस चैप्टर्स में भी डॉक्टर मर्फी ने लिखा है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को सोने के पहले, या जब भी शाम को आपको करना है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो इस तरह रिपीटिशन के कारण सबकॉन्शियस माइंड में ये वाली फीड हो जाएगी। अब आप देखना, आपके पास जो इंक्वायरी आएगी और आप अट्रैक्ट करने लगोगे, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे ऐसे कस्टमर्स, ऐसे ऐसे डील्स आपके पास आएंगी, बड़ी बड़ी डील्स आने लग जाएंगी, बड़ी डील्स। और जो बिजनेस में है उनके पास करोड़ों की डील्स आने लग जाएंगी। ये इतनी पावरफुल एफर्मेशन होती है। सो ये मिस्टर ब्लॉक ने इसको सुबह किया, शाम को किया, सोने के पहले, और शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम वक्त में एक नया हैबिट पैटर्न उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। अब वो पहला वाला जो था, जो डेंटिस्ट वाला खराब एक्सपीरियंस था, वो टोटली रिप्लेस हो गया एक नए थॉट पैटर्न के साथ में। ठीक है, और फिर वापस से ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल सेल्समैन। हाँ जी। How much do you want what you want? A young man asked Socrates how he could get wisdom. Socrates replied, "Come with me." He took the lad to a river, pushed the boy's head under the water, held it there until the boy was grasping for air, then relaxed and released his head. When the boy regained his composure, he asked him, "What did you desire most when you were underwater?" "I wanted air," said the boy. Socrates said to him, "When you want wisdom as much as you wanted air when you were immersed in the water, you will receive it. Likewise, when you really have an intense desire to overcome any block in your life, and you come to a clear-cut decision that there is a way out, and that is the course of your wish to follow, then victory and triumph are assured. If you really want peace of mind and inner calm, you will get it, regardless of how unjustly you have been treated, or how unfair the boss has been, or what a mean scoundrel someone has proved to be.
all this makes no difference to you when you awaken to your mental and spiritual powers. You know what you want, and you will definitely refuse to let the thieves' thoughts of hatred, anger, hostility, and ill will rob you of peace, harmony, health, and happiness. You cease to become upset by people, conditions, news, and events by identifying your thoughts immediately with your aim in life. Your aim is peace, health, inspiration, harmony, and abundance. Feel a river of peace flowing through you now. Your thought is the immaterial and invisible power, and you choose to let it bless, inspire, and give you peace. Yeah, thank you, Vijay ji. We'll be able to read only so much today. Thank you. But ये follow करना मतलब ये वाली किताब में ये है कि एक एक पैराग्राफ भी हम पढ़ते हैं, दो दो पॉइंट्स भी हम पढ़ते हैं, बट ये इतने इम्पैक्टफुल होते हैं और इनको पुट इनटू प्रैक्टिस करना ही पूरे दिन हमको करना पड़ता है. तो हमारा रियल जॉब शुरू होता है जब ये हमारी रीडिंग्स खत्म होती है कि अब आप किस तरह से जी रहे हो, अब आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, किस तरह से आप ग्रेटिट्यूड के जोन में अपने आप को पूरे टाइम रख रहे हो और किस तरह आप सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स के थ्रू आप पैटर्न्स, नए पैटर्न्स बना रहे हो, नए न्यूरल पैटर्न्स बन रहे हैं. तो अब आपके न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में, जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो अलग तरह से वायर्ड एंड फायर हो रहे हैं. सो वायर भी अलग तरह से हो रहे हैं, फायर भी अलग तरह से हो रहे हैं. तो वो हम चेंज कर रहे हैं किताब पढ़ के. तो इस वाले पैराग्राफ में है, सोक्रेट्स को से किसी ने पूछा, मतलब उन्होंने पूछा व्हाट डू यू रियली वांट. तो मतलब कि दैट पर्सन रियली वांटेड समथिंग, तो उसको लेके गए तो उन्होंने उसका सिर पानी में घुसा दिया और फिर बहुत देर तक अंदर ही रखे दिया. तो ऑब्वियसली सांस चढ़ रही थी उसकी पानी के अंदर. फिर उस लड़के का उन्होंने सिर निकाला और फिर कहा कि अब बता तुझे क्या चाहिए सबसे ज्यादा. उसने बोला था पहले मुझे ना बहुत विजडम चाहिए. तो उस पर्सन से अब पूछा जब पानी में उसका सिर डाल दिया, कहते नहीं नहीं मुझे सांस चाहिए, मुझे एयर चाहिए, क्योंकि सांस रुकी हुई थी उसकी पानी के अंदर. तो उसने कहा कि इस तरह से ये इसमें ये लर्निंग है कि आपको जो डिजायर चाहिए ना उसमें फायर होनी चाहिए. यू नो दैट आई रियली वांट इट नो मैटर व्हाट. I want to become, I want to have an excellent communication skills no matter what. उस तरह की फायर, जैसे पानी के अंदर इंसान सांस के लिए तरसता है, ठीक है, जब वो तरस इतनी आ गई है that I have to have this, तब जाके वो चीज हमारे पास आती है. सो यू हैव टू रियली वांट इट, ओके, दैट वे. सो इस तरह की फायर. तो इसमें है कि अगर चाहे आप किसी भी तरह के लोगों के साथ हो, कैसे भी माहौल में हो, आपका ऑफिस बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका स्टाफ अच्छा है नहीं अच्छा है, लेकिन अगर आपके मन में फायर है दैट मुझे 10 लाख रुपए हर महीने रिसीव करने हैं, तो आपके पास आएंगे. अब आप उन पचड़ों में मत पड़ो कि कैसे आएंगे, वो काम हमारा नहीं होता. गिव अ स्ट्रॉन्ग fired desire to the universe. आप ब्रह्मांड में ये एनर्जी डाल दो that thank you universe that I am receiving rupees 10 lakhs every month with ease and joy and I'm so loving it. I'm financially free. I feel stable. I feel financially secure and I can do all the things that I really love. मैं अपना कोर्स कर रही हूँ, मैं बहुत आराम से शॉपिंग कर रही हूँ. I have the freedom of shopping, freedom of travel, freedom of investments. I have freedom to choose. I'm feeling so mentally free because I'm receiving so much money and my income is only increasing by day and night. अगर आपका ये फायर है तो अब आप हाव में पड़ो ही मत. अब आप अपनी जिंदगी be on the roll in any case. Your life, like in your life, you have to be on the roll. Everything is अच्छी एनर्जी रखो, सब चीज चुंबक की तरह आएंगी because we are magnets. Energy is magnetic. Whatever energy you're emanating from your life is going to come back to you. ठीक है, तो अपनी एनर्जी पे वर्क करो कि मैं अपनी एनर्जी कैसे, चाहे सिचुएशन खराब है, आपके टेस्ट होते रहेंगे, हर टेस्ट में पास हो जाना और अपनी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए जो आपको डांस करना है आप डांस करो, वॉक करना है, गाने सुनने हैं, जिस चीज से आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है आप वो करो. फिर आप देखना कि कैसे सारी चीजें हमेशा आएंगी. सो हैव दैट फायर इन योर लाइफ दैट आई रियली वांट टू, बिकॉज वी डोंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक बिल्कुल ही जैसे
अपना कोई बिना एम, बिना पर्पस, बिना ड्रीम कुछ होना। कई लोगों से पूछो आपको 1 साल के बाद क्या चाहिए, उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं है, वो इतने पचड़ों में पड़े हुए होते हैं अपनी जिंदगी में डे टू डे जीने में कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके लार्जर गोल क्या है, उनका ड्रीम क्या है, उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, उनको कैसे पैसे कमाना है, उनको अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में देखना है, नहीं पता होता ना। So, but then we are taught that you should always have, because this human life is meant for expansion and for giving to the others, for giving what you have earned to the others. You know, अगर कुछ ज्ञान आता है मेरे अंदर, so I would definitely share it. अगर मेरी हेल्थ अच्छी होती है तो मैं किस तरह लोगों के लिए काम में आ सकती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसे लोगों को एनहांस कर सकता है, तो उसके बाद एक्सपीरियंसेस की बारिश हो जाएगी मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, एक वो व्यू होता है, नजर लग जाएगी। इतने कमजोर हैं, कमजोर लोगों को नजर लगती है, ठीक है। आप इतने कमजोर हो तो फिर सेशन में आते रहो, सीखो, 50 बार करो तो शायद उससे एनर्जी चेंज हो जाएगी, फिर नजर नहीं लगेगी, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मिस्टर बालाकृष्णन से मिली, जिन्होंने मुझको ये सारे चोंचले हटवा दिए। लाइफ इज सो फ्री, द हैंड्स आर फ्री, देयर आर नो रिंग्स, देयर आर नो नथिंग, देयर आर नो क्रिस्टल्स आई एम वेयरिंग, देयर नो नंबर गेम दैट आई एम डूइंग, देयर इज नो न्यूमरोलॉजी आई एम डूइंग, बिकॉज ऑल दैट्स बुलशिट। दैट इज कमजोर लोगों के लिए, है ना, कि आप इतने वीक हो कि आप क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास सबकॉन्शियस, आपके पास वो एनर्जी जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, आपको चाहिए होगी ये 2 सेकंड की एनर्जी और उसकी एनर्जी, और 5% उससे चेंज हो रही है, 3% होती है। कल्टिवेट दैट इन योर लाइफ, इस ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर है। सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू यूनिवर्सल फोर्स। अब उन पचड़ों में हमको पढ़ना ही नहीं है, क्यों नजर लगेगी, आएगी नहीं। I always say that the shield around me, a shield of God's protection is always around me and around the whole my family and my friends. They are always, this is one affirmation I always write, like, when I write them, that there's always a shield of protection around me, my family, and all my friends and extended relatives. They are all protected. कहीं से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो कभी ये सोचो मत इस तरह की, ये सब सोच है। ये भी जो मेंटल ब्लॉक का चैप्टर कर रहे हैं ना, ये मेंटल ब्लॉक है। ये नजर पजर जो होती है, ये मेंटल ब्लॉक होती है। ह्यूमन लाइफ हैज टू बी सर्कुलेटेड। अगर सर्कुलेशन रुक गया, आपकी विक्ट्री आनी वहीं बंद हो जाती है। तो सर्कुलेट करते रहो, जो आया है वो बता दो, ठीक है, जो हमारी जिंदगी में आया है। अगर आपने 10 भी लोगों की जिंदगी टच की है, या आपको देख के अगर 10 भी लोग इंस्पायर हुए हैं ना, उन सब की एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आएगी। अब आपको कोई बाल का बांका जो भी बोलते हैं वो नहीं कर सकता। Nobody can harm you, nobody can touch you. You are protected because you're the divine child of God, and there's divine love, of the universe flowing through you and to you. So that is what, because we are only a channel of blessings, है ना। जिंदगी चेंज करने के लिए गॉड ने हम लोगों को हैंड पिक किया है, जितने भी हम लोग हैं, so that हमारी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस आए और हम लोगों को एनकरेज कर पाए उनसे कि look, I can do it, why can't you do it? I could do it, and this is how I did. I every day went to my balcony. I do my 5 elements का gratitude. मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ, थैंक यू मदर अर्थ। कल मैं जो फ्लाइट में बैठी हुई थी, जो वापस आ रही थी, इतना सुंदर सब कुछ, मतलब पूरे इंडिया में बारिश हो रही है अभी, तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल क्लीन ग्रीन कलर और अलग अलग तरह के हरे रंग नजर आ रहे थे। कहीं पे ग्रासेस थी, कहीं ट्रीज थे, कहीं पे छोटे श्रब्स थे, कहीं प्लांट्स थे। इतना सुंदर ऊपर से लग रहा था, ठीक है। फिर पूरा स्पेस को मैंने थैंक यू बोला, क्योंकि स्पेस में ही ट्रैवल कर रहे थे, है ना। स्पेस नहीं होता तो सोचो फ्लाइट कैसे चलती। सो खूब सारा अपॉर्चुनिटीज भी स्पेस से ही आती है, पैसा भी स्पेस से ही आता है, एनर्जी भी स्पेस से आती है। तो खूब सारा स्पेस को थैंक यू बोला। फिर खूब वाटर बॉडीज नजर आ रही थी, सीज एंड ओशंस एंड लेक्स एंड पडल्स ऑफ वाटर, उन सबको बहुत सारा थैंक यू किया। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि रोशनी थी तो मैं देख पा रही थी, है ना, तो इसलिए जो एलिमेंट ऑफ फायर होता है विच इज द सन, उसको बहुत सारा थैंक यू बोला कि फायर की वजह से हीट एंड लाइट आती है, तो उसकी वजह से देख पा रहे हैं, है ना। और हीट एंड लाइट को इतना थैंक यू बोला क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कैप्टन ने अनाउंस किया कि -40 डिग्री था, और अंदर का टेम्परेचर तो अपना कंफर्टेबल 22-24 पे किया हुआ था प्लेन के अंदर का। सो उसको बहुत सारा थैंक यू बोला। रोशनी थी, उसकी वजह से मैं देख पा रही थी, तो इसलिए मैंने सन को बहुत सारा थैंक यू बोला कि इतना अच्छा दिख रहा है सब कुछ। नॉर्मली मैं लेट इवनिंग फ्लाइट्स लेती हूँ, इंटरनेशनल फ्लाइट सारी ओवरनाइट होती है, तो इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है।
So I love day flights. So उन सब के लिए थैंक यू बोला, एयर को बहुत सारा थैंक यू बोला। एक तो अंदर भी एसी चल रहा था, बाहर भी पूरी एयर ही एयर थी स्पेस में। तो इस तरह करके नाउ दैट नेचर एंड यूनिवर्स एंड ब्रह्मांड हैज बिकम माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने तो बस ब्रह्मांड से दोस्ती कर ली है। अब कुछ हो ना हो सब उन्हीं के भरोसे, क्योंकि वही जिंदगी चला रहे हैं। I mean, like the universe has, the universal forces has created this world, right? तो उनसे दोस्ती कर लो, बस बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। अपने आप आपके पास आता जाएगा, आपके तिजोरियां भरती जाएंगी, आपके ड्रीम्स आंसर होंगी, आप बहुत खुश रहोगे, आप अपनी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे, एंड यू विल हैव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड रिमूव दीज मेंटल ब्लॉक्स दैट वी हैव जस्ट kind of read today. Yeah, so that is it from my side. Thank you so much. Thank you Deepa and Vijay ji for reading so beautifully. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Dipti. Thank you so much. Anybody wants to share or add? Thank you, ma'am. Ma'am, if Yeah, there is some Deepa time, then... Rathod. Okay. हाँ प्रिया, क्या बोले आप? नहीं मैम, let Deepa say first. हाँ, वो मैंने अभी हैंड रेज देखा, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। हाँ जी दीपा। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ नहीं, मैम, मेरी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे अहमदाबाद में ही, तो फिर वहाँ पे हमें गुड रेंटर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 बार ही लिखा कि थैंक यू फॉर माय ऑल फॉर्च्यून प्रॉपर्टी इज गेटिंग रेंटर फॉर माय फेवरेबल प्राइस विथ ईज एंड जॉय एंड हैप्पी टू अदर्स। तो हमें वो होको इटरी वाला ने एक दिन में इंक्वायरी की और हमारी प्राइस में जो हमें पर स्क्वायर फीट में जो देनी थी उसमें हो गया, और विद इन 24 आवर्स में मैम हो गया। मैम हम कब से 6 मंथ से देख रहे कि अच्छा कोई मिल रहा है, क्योंकि अच्छी ब्रांड मिल रही है तो अच्छा हमें वो रेंट मिलेगा, तो फिर ऐसा मैम 2 ही अफर्मेशन में हो गया। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू लॉट ऑफ अबंडेंस। और अब वो जो घर है आपका, वो उनके लिए भी आप खूब सारा लिखो कि खूब प्रॉस्पर करे वो लोग जो आपके किराएदार आए हैं उस घर में। आप उनके लिए खूब ब्लेसिंग लिखो दैट दे आर पेइंग यू मनी एंड दे आर ग्रोइंग, फ्लरिशिंग एंड प्रॉस्परिंग डे बाय डे। वो घर उनके लिए खूब लकी हो, उनके बच्चों के सारे सपने पूरे हो जाएं, उनके हो जाएं। नहीं मैम, हम ही जा रहे हैं, अभी इंटीरियर हो रहा है कोई किराएदार नहीं, अब तो होगा, अभी फ्लोरिंग हो रहा है, फिर इंटीरियर होगा, फिर हम ही जाएंगे। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर दूसरा है मैम कि माइंडफुल ईटिंग का अफर्मेशन करने से मेरी च्यूइंग हैबिट इंप्रूव हो गई। पहले नहीं होती थी एकदम से कि नहीं, आप बोल रहे हो कि 2 रोटी खाने से आप कभी भी सेंटर पर आते हो तो कि 2 रोटी तो 45 मिनट तो हो ही जाती है, आप कैसे खाते हो सब, तो फिर क्या वो जल्दी जल्दी में ऐसा स्लो खाने लगे हो? हाँ, माइंडफुल ईटिंग मैं करने से च्यू करके प्रॉपरली खाते हैं, तो फिर वो मेरे हस्बैंड की भी इम्प्रूव हो गई और मेरी भी इम्प्रूव। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्पीकिंग एंड माइंडफुल थिंकिंग, तो फिर उससे बहुत बेटर मैं थोड़ा पंक्चुअल हो गई हूँ, फिर वो एटीट्यूड में चेंज हो गया है, खाने में चेंज हो गया है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। माइंडफुल चूइंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल टॉकिंग। या और फिर दूसरा एक आपने वो सॉन्ग का बोला ना, तो घर में मेरे सब कबीरा वाले, मेट्रो वाले वो सॉन्ग बजते थे, तो फिर घर में वो रोमांटिक वाले बजते थे, तो मेरे सब बोलते थे मम्मा कि क्या बजा रहे हो। और आपने जिस टाइम से बोला है कि ये रोतड़े वोतड़े सॉन्ग नहीं सुनने, तब से मेरे मेरे बच्चे भी मेरे पे हंस रहे, अब कहाँ गए वो सॉन्ग, आप बजाते क्यों नहीं। हाँ, एक्चुअली म्यूजिक की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, इट रिवर्बरेट्स इन आवर बॉडी, सो इस वजह से। तो अगर वो नेगेटिव हो गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं वो वाले नहीं मैम, वो अरिजीत सिंह के आते हैं ना अभी, वो कबीरा वाले, मेट्रो वाले, वो सब रोमांटिक होते, तो मैं वो ऐसे घर में सुनती थी, तो वो भी अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं, कोई बोलता है तो भी कि नहीं मुझे नहीं सुनने, हम तो अच्छे ही वाले रोमांटिक क्यों नहीं सुनने? अरे प्लीज गाइस, सब लोग मैम उसमें भी कंप्लेन होती है, वो कपल में कंप्लेन हो जाती है, फिर आई फेल्ट दैट। राजन शाह ने तो वो गाना रोज सुनने को बोला था, सूरज हुआ मध्यम, दैट्स ओके, उसमें वर्ड्स आते वो अच्छा है, पर वो कबीरा तो ऐसे वो कंप्लेन वाले होते हैं, तो आई फील कि वो कपल में कंप्लेन होती है, तो मैंने बंद कर दी है वो। आपने भी बोला, दैट्स ऑल, थैंक यू मैम, ऑल ऑफ यू। एक गाना है ना, एक बॉम्बे मुंबई के बारे में, मुंबई की यहाँ पे क्या जिंदगी टफ है, ये है वो है, एक कोई सॉन्ग है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, मेट्रो का है शायद, बॉम्बे वाला। हाँ, तो सब जिंदगी बहुत टफ है, बॉम्बे की जिंदगी एक पुरानी गाना है, पुराना गाना है वो, तो उसमें यही है कि जिंदगी बहुत टफ है, ये है वो है।
तो इसलिए कभी मत गाना। जितने भी बॉम्बे वाले हैं जो बॉम्बे जाते हैं, उन्होंने इसीलिए उसको इतनी एनर्जी उस गाने को दी है। वो बहुत पॉपुलर हिंदी का गाना है, हिंदी पिक्चर का। इतना सुना है लोगों ने गाना दैट एक्चुअली मुंबई में चॉल्स इतनी ज्यादा है, ये है वो है, बिकॉज पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की एनर्जी उस गाने में गई है, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर गाना है। गुड जॉनी म्यूजिक वॉकर ने इन। गाया था। हाँ, जॉनी मैम उसका वॉकर एक नाम ने। और क्या है, कौन पुराना सा गाना वाला? है बॉम्बे के बारे में। मुंबई दिल जान। हाँ, ये है दिल है बॉम्बे मुश्किल है है। जीना यहाँ, ये है बॉम्बे। यस दिल यस। जान। हाँ, उसमें पूरा ये है दिल। क्यों क्यों मुश्किल है? कंप्लेन ही। लाइफ इज ईज एंड एफर्टलेस, यू नो, इट इज नॉट मुश्किल। जहां पे मुश्किल वर्ड आ रहा है ऐसी चीजों को, बिकॉज म्यूजिक रिवर्बरेट्स इन द बॉडी, इट रीचेज एवरी सेल, यू नो, लाइक इसीलिए तो म्यूजिक सुनते हैं, क्योंकि इट गिव्स एन इम्पैक्ट टू अस। लेकिन वो कौन से लिरिक्स में भिगा के वो म्यूजिक आया हुआ है, वो मैटर करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा। तो इसीलिए अपने चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, तभी तो आई वाज प्लेइंग लाइक, यू नो, सो प्ले ऑल नाइस रोमांटिक सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स, हैप्पीनेस सॉन्ग्स, ट्रैवल सॉन्ग्स, वो सारे। सो बिकॉज सॉन्ग्स डू मेक अ डिफरेंस, है ना। जो भगवान की भी प्रेज में भजन कीर्तन होते हैं, वो गाने के रूप में गाए जाते हैं, है ना। देयर इज ऑलवेज अ रिदम। वो जो एक ओमकारा होता है, उसमें भी है ना, कभी तेज हो रहा है, कभी मतलब वो टोन ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, जो गुरुद्वारे में होता है। तो एक ओमकारा में भी एक रिदम होती है, जिस तरह से कभी तेज तेज होता है, कभी जल्दी जल्दी होता है। सो यू नो दैट, एंड कौन से वर्ड्स उस म्यूजिक में, यू नो, लाइक दे पिरो के हम सुनते हैं, दैट विल डेफिनेटली मेक एन इफेक्ट। सो या, एंजॉय द लाइफ। तभी तो हम वो सुन रहे थे, लव यू जिंदगी एंड धूम मचा ले, ऑल दैट, right? And all the English songs that have got very good words, you can keep listening to them. Yeah, so thank you so much. Have a beautiful, beautiful Friday. Weekend starts today, and have the best of it. Thank you. ma'am. Thank you Bye-bye. so much, थैंक ma'am. यू, बाय बाय। Thank you so much. Thank you. Thank you, Dipti. Oh, sorry, there is Priya Taneja. I'm so sorry. I just saw your. इट्स ओके, मैंने अभी भेज किया था, नहीं, आप प्लीज शेयर करो प्रिया, प्लीज शेयर करो। मैं तो गाना गाने लगी हूँ आज। कवालियाँ गाना गा लूं? गाना आपको? हाँ, गाइए। या तुम्हारी दर पे सब तलबदार बैठे हैं, तुम्हारी राह में नजरें झुकाए बैठे हैं। कुछ तो है ऐ मालिक तुझ में, तभी तो सब सर को झुकाए बैठे हैं। मिलता है कोई मेहरबान रहबर नसीब से, मिलता है कोई मेहरबान रहबर नसीब से, झुकता है जिसके सामने इस पर नसीब से। आओ नसीब वालो यहाँ प्यास बुझा लो, आओ नसीब वालो यहाँ प्यास बुझा लो, बहता है जिसमें ज्ञान का दरिया नसीब से, बहता है जिसमें दीप्ति मैम के ज्ञान का दरिया नसीब से, मिलता है कोई मेहरबान, मिलता है कोई मेहरबान, सुनता तो है आवाज तेरी कुल जहां मगर, सुनता तो है, सुनता तो है, सुनता तो है दिल की आवाजें, सुनता तो है, सुनता तो है आवाज तेरी कुल जहां मगर, बहता है जिसमें ज्ञान का दरिया नसीब से, मिलता है कोई मेहरबान, मिलता है कोई मेहरबान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। Thank you so much for your beautiful singing. Beautiful voice. है ना, नसीब मतलब आईज टू सी एंड हियर्स टू हियर, जो हमने मैजिक बुक के पहले चैप्टर में पढ़ा था।
Everything comes to our life when we are ready for it, when we are ready, when we think that we are worthy and we are open to receive abundance. That's called These Naseeb, right? sessions are like that, ma'am. Every time, like आप बोलते हो ना कि yeah, it's over. I just feel कि wow, it was so wonderful. ऐसा ही लगता है जैसे प्रिया ने बताया है ना जो ये सॉन्ग बोल रहा था. So I feel the same when while coming to these sessions and जब बंद होता है like whenever we conclude the thing ना तब ऐसे लगता है wow कितना अच्छा है अभी तक कहाँ थी मैं. So thank you so much, Actually, ma'am. Thank there's you. so much Thank meaning to you. life because of Ma'am, this. Definitely, the books are amazing. मैम मेरे को एक शेयरिंग Your करनी है थोड़ी सी. explanations are beautiful. So thank you, Priya, for bringing music to our life early in the morning. Thank you. Deepti ma'am. Hanji Renu, you want to share And she something? sang very Yeah. well. Yeah. Your voice is very good. Yeah. Priya. परमात्मा की आवाज. हाँ. Hanji Renu, बताइए. हाँ मैम, शेयरिंग छोटी सी है बट बहुत बड़ा मिरेकल हुआ अभी मेरे साथ ना. मैम मैं किसी फंक्शन में जा रही थी, साड़ी पहन रखी थी बहुत हेवी, एंड मेरा मतलब पार्किंग से निकल रही थी तो थोड़ा स्लोप था, तो मेरा मतलब इट्स अ बिग स्टोरी, मेरा पैर पूरा लेफ्ट वाला ना मतलब आप समझ लो मतलब आधे से ज्यादा मुड़ गया, बिल्कुल 4 इंच की हील थी तो मुड़ा और मैं गिर गई, और मैं गिरी तो मेरा बॉडी का पूरा वेट नीज जो होता है राइट की उस पर आ गया, एंड मेरी पोजीशन बिल्कुल इतनी टेढ़ी हो गई, मैं 5 मिनट तक हिल भी नहीं पाई. मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नीलेश मेरे दोनों पैर की, घुटने की भी और एंकल की भी हड्डी 100%, आई डोंट थिंक सो कि बची होगी. तो और मेरे भी एग्जीबिशंस भी हैं और सारे फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, तो आई वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू मूव मी, बट मेरा इतना पेन था कि मैंने कहा मुझे छोड़ दो. फिर मैंने थैंक यू और जो भी होता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी. फिर मैंने पॉजिटिव अपना रखा एटीट्यूड की लेट्स सी. मैम यू वोंट बिलीव, शायद जो चीज मेरी 2 महीने मेरे को लग जाते, मैम मुझे सबने कहा कि चलते चलते भी कभी कभी पैर मुड़ जाता है, लाइक मेरी फैमिली में हुआ है, तो किसी को फ्रैक्चर हुआ है, किसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, लिगामेंट ब्रेक हुआ है, तो आप एक्सरे करा लो, ये करा लो, वो करा लो. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा. मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखना कुछ नहीं होगा, मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा. एंड यू वोंट बिलीव मैम, मतलब कल से तो मैं वॉक पे भी जा रही हूँ, प्रॉपर ब्रिस्क वॉक पे, एंड आई एम मतलब वॉकिंग लाइक एनीथिंग. हाँ मेरे नी में जरूर बहुत ज्यादा खरोच खुरंड आई, मतलब चोट लगी हुई है, तो पूरा वो ना पपड़ी भी जम गई, मतलब कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं हुई है. बट ऑब्वियसली जब आप गिरते हो तो चोट हील होने में 2-3 दिन लगते हैं, हड्डी पे लगी है बहुत तेज. बट मैम इट्स अ मिरेकल बिकॉज whenever I walk, I always say thank you my sweat, my immunity, my metabolism, my foot, my ankle, my elbows, my this knees, muscles, bones. मैं सबको मैम बहुत थैंक यू बोलती हूँ. तो मतलब सीरियसली द वे आई फेल डाउन ना, मेरा बेटा और नीलेश खड़े थे, दे वर लाइक मतलब इससे बुरी तरह कोई गिर नहीं सकता मैम. इट वाज 4.5 इंचेस हील और मेरा पूरा पैर मतलब समझ लो थोड़ा और मुड़ता ना तो वो वैम्पायर वाला पैर हो जाता मेरा, जो होता है ना पूरा उल्टा पैर. And it's a miracle, ma'am. It's a miracle. Wow, amazing. Congratulations that you always protected. वही चीज है ना, always think that there's a bubble of God's divine protection around you, your family, your friends, everyone. कभी कुछ नहीं होगा. There's always the protective force. So yeah, thank you for sharing us and reiterating the divine protection, God's protection. Thank you, ma'am. Thank you to you. And enjoy the best of health. Bye bye everybody. Have a great weekend. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.